देखो हमारे सिलेबस में वी हैव अ टॉपिक ऑफ स्पेस technology. So space technology include our spacecraft, satellites, space station, orbital launch, deep space communication, in space propulsion. All these topics are included within our space technologies. Okay, so one by one we will cater. From the basics we will start. First is the types of satellite. First you got to know this particular thing clear into your mind that हमारे पास तीन चार mainly broadly we have the type of satellite. One, we have the communication satellite, and then we have a earth observation satellite, then we have a navigation satellite, and then we have the other basic satellites. Now what is a satellite? First understand this particular thing. Satellite is basically, it can be natural also, it can be artificial also. Natural कैसे? जैसे moon है, moon is a satellite which revolve around our earth, right? So moon is a natural satellite, whereas we also have the artificial satellites which are maybe ISRO is sending, or maybe NASA is sending. All these space agencies are sending, so they are called to be as artificial satellites. So why we are sending them, that you will get to know into the course. Like communication satellite क्यों भेजते हैं? ताकि communications हम networks पहुंचा पाए. Like nowadays we are using the television, we are having the radio connectivity, we are using our internet, military, defense, they are also using for communication purposes. So through what we are getting all those connections? Because we have communication satellites in our space. That's why we are getting the help of radio telecommunication via transponders basically. Okay, so mostly if I talk about, so where communication satellites are mainly sent into the space, so they are sent into the geostationary orbit. We will discuss what are orbits. First here you only understand कि they are sent mostly into the geostationary orbit, which is basically near the equator. Okay, and till what level they send within the space? We have three levels actually in the space. We have a low level, then we have a middle level, then we have a high level. Okay, so low earth orbit is basically 180 to 2000 kilometer from the land, from the surface to the sky. So लो अर्थ ऑर्बिट किसे बोलते हैं? 180 से 2000 किलोमीटर तक जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, सो एंड देन वी हैव अ मिड अर्थ ऑर्बिट ऑल्सो. मिड अर्थ ऑर्बिट मीन्स विच इज मोर देन 2000, and till what limit? Till 35,000 kilometer. Then above 35,000 approx kilometers, then above that it is called to as high earth orbit. Okay, so if I talk about the communication satellite, they are mainly sent into the high earth orbit. ठीक है, क्या क्या अभी हमने बात की. कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट, ये सारी सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो भी स्पेस एजेंसीज भेजती हैं. क्यों भेजी जाती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट? फॉर द यूज ऑफ आर रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मिलिट्री, डिफेंस, फोन कम्युनिकेशन के लिए, इन सब के लिए हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए. कहाँ भेजी जाती है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में. कितना डिस्टेंस होता है? हाई ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, मोर देन 35,900 किलोमीटर. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि GSAT-19, GSAT-6A, GSAT-31. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट. Then if I talk about earth observation satellite, so they are also called to as geographical satellite, which give you the information regarding the disasters, drought, flood, etc. for the urban development, कितना हुआ एरिया में, वाटर ओशियन का क्या रिसोर्सेज हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट कितना है, मिनरल्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं, कहाँ से हैं, तो उनसे ऊपर से सैटेलाइट व्यू से उसका इमेज दे रहा हूँ. जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. राइट नाउ recent economic survey they have also used the statistical data. Volume 2 जो है हमारा economic survey का this time, they have added some satellite images. So by which satellites they might have taken those images? By the help of earth observation satellite, because they have shown the electricity coverage, they have also shown the water level, they also have shown the urban development from earlier to now, the highways development from earlier to now. So from all those comparison, all those photographs of India, from where they got? So they got from the satellite, from the earth observation satellite. जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कार्टोसैट है
है, रिसोर्स सेट एक सैटेलाइट का नाम है, ऐसे ही आपका एक हाइसिस भी एक नाम है सैटेलाइट का, द फुल फॉर्म ऑफ दैट इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट. देन वी ऑल्सो हैव रीसेट सैटेलाइट इज रेडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. तो ये सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के एग्जाम्पल थे. थर्ड कैटेगरी आपके आते हैं टाइप ऑफ सैटेलाइट में नेविगेशन सैटेलाइट. नेविगेशन सैटेलाइट्स आर बेसिकली जैसे वी आर यूजिंग द जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग हम जो यूज करते हैं ऑफ यूएसए बेस्ड. ओके, सेम वे इंडिया का भी एक खुद का नेविगेशन सैटेलाइट है, दैट इज IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. ओके, within this IRNSS total 8 satellites are sent into the space, 3 in the geostationary orbit, 5 in the geosynchronous orbit. I will discuss one by one what are they. Okay, so 3 in the geostationary orbit, 5 in the geosynchronous orbit, and they clicks the pictures and they help in the navigation. Okay, for example navigation for the ship travelers who are Indian Navy है जैसे for example, so for them it is acting as a navigation, same way GPS की तरह ही है. ठीक है, so it can be used into the terrestrial, marine और aerial even navigation में यूज होता है. डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम व्हीकल्स को ट्रैकिंग करना है उस टाइम पे, या आपको कोई भी मैपिंग करना है, जियोडेटिक डाटा कैप्चर करना है, so there we use the navigation satellite. Then we have the another satellites like we have the reconnaissance satellite. So उसमें क्या होता है, within that particular satellite we have the military और इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस पे हम इसको यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कोई जासूसी करना हो, स्पाई करना हो, या एस्पियोनेज बोलते हैं उसको. ठीक है, whereas even in the weather satellites also there are other examples की we have weather satellites also like Kalpana 1 और INSAT is an example of weather satellite. Then we have micro satellite, nano satellite और academic के पर्पस के लिए जब कोई सैटेलाइट भेजी जाए, जैसे कि एग्जाम्पल है कलाम satellite, Pratham satellite. Okay, so after discussing the types of satellite, now our next topic is discussing about the types of orbits. So we have types of orbit like polar orbit, geosynchronous orbit, geostationary orbit, and sun synchronous orbit. Now what is the difference in all the four? One by one we will discuss. Polar orbit में क्या होता है, means it is revolving around the poles. ठीक है, जैसे अर्थ है तो अर्थ के पोल्स के उधर घूमेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल उस डायरेक्शन में घूमता रहेगा गोल गोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कवर करेगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा. सो दैट इज कॉल्ड टू बी पोलर ऑर्बिट वेयर इंक्लिनेशन इज नियर 90 डिग्री नियर आर पोलर ऑर्बिट्स. ओके, सो इसका यूज कब होता है, जब हमें ये मेजर करना ओजोन कितनी है स्ट्रेटोस्फेयर में, टेम्परेचर, या मैपिंग करनी हो अर्थ की, अर्थ मैपिंग जो सैटेलाइट्स हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, या फिर हमें स्पाई या मिलिट्री वाला सैटेलाइट की तरह एक्ट करना है, या वेदर सैटेलाइट्स हैं, तो वो कहाँ भेजी जाती है, पोलर ऑर्बिट में भेजी जाती है. सेकेंड है जियोसिंक्रोनस. नाउ व्हाट इज द जियोसिंक्रोनस? जियोसिंक्रोनस ये होता है कि बेसिकली ये जैसे हमारा इंक्लिनेशन होता है ना, एक्सिस होता है हमारे अर्थ का, एक्सिस जो है हमारी टिल्टेड है. ठीक है, इमेजिनरी लाइन, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. तो जैसे वो इमेजिनरी लाइन पे हमारी अर्थ घूमती है ना, उसी वे में हमारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भी घूमता है. ठीक है, इन द सेम एक्सिस वे. ओके, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जियोसेंट्रिक ऑर्बिट है या ऑर्बिटल पीरियड या रोटेशन जिसे कहते हैं, हम रोटेट कहते हैं ना, अर्थ रोटेट करती है ऑन इट एक्सिस, तो वो उसी पाथ में हमारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भी घूमता है जैसे अर्थ रोटेट करती है. ठीक है, अब ये कहाँ यूज होता है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या फिर जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना बताने वाली सैटेलाइट्स होती है उनमें. लेकिन इनका जो डीमेरिट ये रहता है कि इतना अच्छा इमेज नहीं दे पाती हैं. ठीक है, और अगर इनको मॉनिटर कर रहे हो अपने पोल्स के पास, तो पोल्स के पास ये फंक्शन नहीं कर पाती क्योंकि ये तो एक्सिस के हिसाब से घूमती है. ठीक है, इसके बाद थर्ड आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. वो कैसे घूमती है, हमारे इक्वेटर के साथ. ठीक है, जो हमारा इक्वेटर होता है उसके साथ जो इंक्लिनेशन है बिल्कुल जीरो है, मीन्स बिल्कुल इक्वेटर के जैसे, जैसे इक्वेटर पूरा पृथ्वी को कवर करा है, वैसे ही हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इक्वेटर की ही डायरेक्शन को फॉलो करती है एज इट इज. ओके, यू कैन ऑल्सो से कि अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, उसके घूमने की बात कर रहे हैं, तो रेवोल्यूशन जो है वो रोटेशन के दोनों
दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स में क्या होता है, सन जैसे हमारा पृथ्वी जब सन का चक्कर काटता है, जब जैसे घूमता है इस डायरेक्शन में कि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर गिरे उस एरिया पर जहाँ पर हमारी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट घूमेंगी, ठीक है। मेन रूल ये होता है कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स इस उस एरिया में भेजी जाती हैं, उस डायरेक्शन में घूमती है जहाँ पर जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली वहाँ उस एरिया पे पड़ती रहे, ताकि जो इमेजेस जब सैटेलाइट लेगी तो इमेजेस बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। जनरली इनका एल्टीट्यूड 700 से 800 किलोमीटर तक का रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे एक दिन टाइम पास होता है, पूरा एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, तो एक 24 घंटे में ही वो सैटेलाइट उसी स्पीड से एक पूरा चक्कर लगा के पृथ्वी का घूमती है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि मिलिट्री पर्पसेज में या रिमोट सेंसिंग पर्पसेज के लिए हम यूज करते हैं हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं बेसिकली, इनको आप ये भी कह लीजिए कि इन जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में भेजी जाती हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ द सैटेलाइट्स। देन ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जो कि आपका 180 से 2000 किलोमीटर की रेंज में होता है लैंड से, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहाँ पर भेजी जाएंगी, अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स यहाँ पर भेजी जाएंगी। इवन जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मिड अर्थ ऑर्बिट की, तो मिड अर्थ ऑर्बिट कहाँ है, मिड अर्थ ऑर्बिट बेसिकली हमारा 2000 किलोमीटर से ऊपर और 35,780 किलोमीटर के बीच के एरिया को बोलते हैं। इसमें कौन सी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, जो मोलिनिया ऑर्बिट की हो या फिर सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट की हो। सेमी सिंक्रोनस अभी हमने बात की ना, सिंक्रोनस क्या होता है, तो सेमी सिंक्रोनस में बेसिकली जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसी के जस्ट पास ही होता है, लेकिन रेंज जो है वो 26,000 तक रहती है किलोमीटर्स में। उसके बाद हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या रहता है, वो मोर देन आपका जो 35,780 किलोमीटर से जो और ऊपर होगा वहां पर आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स, बेसिकली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स भेजी जाती है वो वाली, ठीक है। अगर हम थोड़ा बात करें कि इंडिया में कैसे स्पेस सेक्टर हमारा इमर्ज हुआ, कैसे सेटअप हुआ, ये सारी कहानी। सो हिस्ट्री क्या है हमारे स्पेस सेक्टर की, बेसिकली इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीवी रमन एंड मेघनाद Saha. So they introduced the concept of radiation, meteorology, study of upper atmosphere. Then we have a very good personality of Homi Bhabha, who then came out with the idea of atomic energy, nuclear energy, setting up the Department of Atomic Energy in 1950s. Then we have the Vikram Sarabhai and Dr. Ramanathan, who got Nehru support also. Nehru was also in the view that India should have its own space agency. Then they together set up the Indian National Committee for Space Research in 1962. Then there comes from there only we emerge with the Space Research Organization, that is ISRO. ISRO 1962 में स्थापित हुआ था, वही जो हमने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया था उसी को कन्वर्ट करके फिर इसरो बना दिया। देन आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव द साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन experiment. From there then we have firstly introduced our first satellite by the help of Soviet launcher. We launched the Aryabhat satellite. उसके बाद हमने भास्करा satellite first and second launch किया through using the Ariane passenger payload. Okay, we have different payloads also. We will discuss what is PSLV, GSLV, like this. Okay, so this way our whole space sector was developed. And if I talk about the recent mission, I will discuss in another class. This was an introductory class. So यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ जैसे important mission हमारे कैसे, जैसे चंद्रयान मिशन है, गगनयान मिशन है, okay, मार्स ऑर्बिटर मिशन है. So we can use the space sector in multiple ways. We can use in the military, we can use in agriculture, environment, disaster management, resources में, village की help में, telecommunication में, या फिर हमारे education में, even in health also it can help. Okay.